बोलिए गुरुदेव की वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारे। वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारे। वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारे। वृंदावन में धेनु चरावे
राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे महाराज को सुनाइए आप बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम जियानिला प्रेमोधन करुणा प्रचुर जियानिला जियानिला प्रेमोधन करुणा प्रचुर जियानिला प्रेमोधन करुणा प्रभु को साकेला आचार्य प्रभु को
जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाधिभक्ति वेदांत शिवानंद विष्णु महाराज वेदांत विष्णु महाराज केशव संवर्तन गोपाल विक्रम साई महाराज श्री विष्णु नाम अनंत कोटि विष्णु वृंद की भक्त वृंद की जय कहाँ गए? He's working. He's coming to film it. No. To put the Brinanga here. Oh. And when you need the Brinanga. Interesting. Sarvai Gauri Chandrai Radhikai Tadare Krishna Krishna Bhaktai Bhaktai Namo Vancha Kalpatru Vyascha Kripasya Vyavacha Patitanam Pavnami Vaishnave Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhupada Sri Radha Swastika Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare. First of all, I offer my unlimited pranam unto my Paramaraditama Diksha Gurudev Nitya Lila Pravishna Om Vishnupad Astotra Satasya Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. I also offer my unlimited Dandavat Pranam unto my Param Araditama Siksha Gurudev Nitya Lila Pravishna Om Vishnupad Astotra Satasya Srimad Gaur Govinda Swami Maharaj. I also offer my unlimited Dandavat Pranam unto my Rupanunga Guru Varga and Guru Parampara, and I offer my unlimited Dandavat Pranam unto Sripad Bhaktivedanta Maharaj, and to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, and also to all the respected guests. So, we have come here to on a very auspicious moment. We have come here to hear some Harikatha from Pujapad Van Maharaj. Maharaj has requested me to say a few words, so I'll try and keep it brief, because I also want to have come to hear from Maharaj. You know that when our Gurudev was on the planet, many of you, of the disciples at least, and maybe you have seen in a video, or maybe you have heard from from our sannyasis, how Gurudev sometimes he would be overwhelmed by different kinds of ecstasies. Sometimes tears would run down his cheeks. Sometimes he would, become completely silent, not moving. Devotees, even from the very beginning when Gurudev came, and the first time we saw these symptoms. Prabhuji can remember? We remember just when we were sitting, the first day when we were sitting with him, and we did a little bit kirtan, and then we stopped, and then we saw tears were coming out from his eyes. And we became very emotional seeing these tears, and we were very happy to see that such an elevated Vaishnava, where we had seen these tears also in Srila Gaur Govinda Maharaj, and so many Vaishnavas, we saw these ecstasies manifesting in the body of a pure devotee, which is always very special, and it's like a blessing to see all those symptoms of love of Godhead. And to see and to witness this is actually a great blessing, because it's very rare to actually even meet a pure devotee, a Mahabhagavat, and to again see all these symptoms of ecstasy. It's very rare and it's very special. And we know what we should know is that these ecstasies actually they are compared to elephants. Just like elephants, when they come into a sugarcane field, they start to uproot the sugarcane
big stalks at a time, many stalks at a time, and they start to smash them to the ground, and they start to drink the sugar cane. They chew it and they drink. And actually elephants, they're used to eating what? Grass, isn't it? They're eating leaves, isn't it? And they're eating fruits, like these things. Huh? Banana. They like banana? Banana. So when अच्छा लगता है. So you see Maharaj is it's very nice. He's saying bananas. They love bananas. Banana tree. Banana tree. Yeah. Oh, the leaves. केला की जो पेड़ है उसको खा लेते हैं. अच्छा. Or, so they're eating. Maharaj is explaining also eating the leaves. But now sometimes you see that these elephants, when they come in the sugarcane field, and they start smashing those sugarcane stalks and eating and chewing the sugarcane, they don't know what they're tasting because it's very, very sweet. It's like liquor and it's like very sweet to them, and it gives them like a sugar rush, you know. So they start to smash and keep on eating all the sugarcane, and within a short time, what happens to the whole sugar field? It's completely destroyed because elephants are very powerful. You have seen they can pull tremendous or logs of wood. They can pull. So when Guru Vargas, when they are drinking Bhakti Ras, something also becomes destroyed, something also falls apart. What is that? Body. Because they're so absorbed. They're so absorbed in serving the divine couple. It's just like a tree on which a leaf rests, and that leaf is completely dried up, and the connection is about to be severed from the tree. Like this, when these eternal associates, when they reach advanced age, they are all serving so much. They are so much absorbed in the service of the divine couple that they have no time for the body. So the servants, they are the ones who are responsible for maintaining that body. If they're not there, they will, because they don't care. They're actually in so advanced stage that they're completely absorbed and they're completely detached of the body. The body is just like a shell. So the servants, the sevaks, they're the ones who are actually maintaining the body and keeping the body in good because these ecstasies, these symptoms of divine love, they're like the elephants breaking the whole field. These ecstasies, because once a pure devotee is drinking this bhakti ras, you will see, and it goes more internal and more internal because he's advancing in age, but at the same time he's going more and more he's becoming more internal in his service. So the sevaks are the ones who are actually responsible for keeping our Gurudev with us, and therefore we are Pujapad Madhav Maharaj such how do you say, gratitude that he has done such a marvelous service of keeping Gurudev so long on the planet with us by his selfless service, by his sacrifice. His sacrifice, Gurudev stayed so long with us, and we were all so much able to benefit from Gurudev's association. So therefore, whenever I meet Pujapad Van Maharaj or Madhav Maharaj, I have so much respect for them because they have done such great service to our Guru Varga. And we should know that if we are disrespecting such pure sadhus, we should understand very clearly
Bhakti ama preme bandhiye jahan neta pare dekhaye amare. Bhakti is in the heart of the devotees. And our Pujapad Van Maharaj, Pujapad Madhav Maharaj, Pujapad, all our sannyasis, they have served their Gurudev so long, they have so much Guru Bhakti. If somehow we respect, we should not only respect our Gurudev, but we should also respect the God brothers. If we disrespect the God brothers, we should understand we are also disrespecting that bhakti which is in their heart. We are disrespecting that bhakti which we are trying to attain. So therefore we should always remember this very clearly, is that we should not only honor our Gurudev, but we should also honor the God brothers. We should remember this very clearly. If we want to attain bhakti, we will have to honor the Vaishnavas according to adhikar and their relationship to Gurudev. So therefore, this is a very important siksha for us, that we always honor the Vaishnavas. By honoring, I remember when Gurudev came the first time to Holland, the first thing he made very clear to us, by honoring the Vaishnavas, we honor Gurudev. Remember that? The first thing Gurudev told us? By honoring the Vaishnavas, we are honoring Gurudev. And by honoring Gurudev, we honor Radha Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. So our spiritual life is very much dependent on this, and how much regard we have, not only for Guru, but also for the Vaishnavas. Therefore, you see, we have sung such a beautiful song, Maharaj was singing, Ye Anila Prema Dhana. What is this song about? This is a song about the separation of one feels when a Vaishnava has entered, isn't it? Aprakatila, we sing this song when a Vaishnava enters Aprakatila. This is all teaching us how much regard we have for Vaishnavas. Go Premanande. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Padale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Vancha Kalpadrivascha Kripa Sindhubhaivacha Bhaktanam Pavaneho Vaishnaveho Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishamanusute Devi Pranamami Haripriye Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasya Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namah Bhakta Vihina Parada Lakshai Khiptasya Kamadi Taranga Madhai Kripamai Tvang Saranam Prapanna Vinde Namaste Charanarvind Bhajami Radham Arvinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasam Badami Radham Karuna Bharadra Tato Mamanaste Gatirnakari Sama Sundara Sikhanda Shekhara Smirahasa Murali Manohara Radhikar Sikamang Kripanidhe Sapriya Charana Kinkaring Kuru Samvidata Sanatirang Vibho Prarthaye Brajamandranandana Astu Mohono Tabati Vallabha
जन्म जन्मनि मधेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषवानंदिनी श्री मुखाब्ज रस लोल सटपद राधिका पदतले गता स्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरारुण बिम्बफलदृष्टा पुरनन्द सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न वियाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचं रम्यं सकलजनकं मं परवधूं मे सदा काली काली प्रमदपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हिंदी में बोले ना हिंदी समझते सब हाँ? सर्वतः मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का वैचरण कौल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज श्री गुरुगंध गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम सिखा है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद अर्थात संन्यास लेने के पश्चात चैतन्य जगन्नाथपुरी में पधारे और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु सार्वभौमाचार्य जी के उद्धार भी किया, उनके सर्वभूत दर्शन कराया। सर्वभूत समझते हो क्या है? अरे sort means six. Chaitanya Mahaprabhu mentioned 6 arms and so too Sarvabhaumacharya. And Chaitanya Mahaprabhu proved I am same Krishna and same Ram and same I am sannyasi Shri Krishna Chaitanya. Because Sarvabhaumacharya is acting the role of impartialist Mayavadi. Actually, Sarvabhaumacharya, he was the guru of the heavenly planet that is called Brihaspati, that is called Dev Guru Brihaspati. Yeah. But he was acting the role of impartialist Mayavadi. Yeah. Well, Lord Chaitanya Mahaprabhu defeat him all the Mayavad philosophy, and Lord Chaitanya Mahaprabhu established Achinta Vidabhed Tattva Siddhanta. क्या बोला? What did he establish? Achinta Vidabhed Tattva Siddhanta. And Lord Chaitanya Mahaprabhu proved Shakti Parinam Bhat. Is very important.
Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, he told to Sarva Bhattacharya, I have to go South India to find out my elder brother Viswarup, because Viswarup took sannyas, but I have to find out where is my brother Viswarup. Actually, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he proceed to South India mainly to meet with Rai Ramananda. Because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, he is the Supreme Personality of the Son Krishna. He appeared in this Kali Yuga, some regions, we also explained. Sri Radha Pranam Mahima, these slokas. What is the glory to highest prem, divine love of Srimati Radhika? राधि की प्रेम की महिमा क्या है और प्रेम की सर्वोत्तम सीमा कहाँ तक पहुंच सकते हैं और उस प्रेम की रस को कैसे आस्वादन करें, यही महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट था। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आने की जो बता जो श्लोक स्वरूप दामोदर ने लिखा से राधा प्रणव महिमा किदिशो बाईवा सद्दो महिमा किदिशो बाब सोक्कंच मधुम से किदिशो बिति लोभात तद्भाव समझन सूचि गर्भ सिंधु। तीन कृष्ण की मन में वांछा हुई, 3 desires came in the heart of Krishna. Then Krishna, he appeared in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. That 3 desires is that, क्या कहता? Sri Radha Pranay Mahima. What is the divine love of Srimati Radhika? राधे के प्रेम की प्रणय महिमा क्या है? प्रणय के शब्द बहुत लोग कम जानते हैं। प्रणय किसको कहा जाता है जानते हो कि नहीं? विवाह के समय होता है ना, प्रणय बंधन कहा जाता है। पानी बंधन, पानी ग्रहण, प्रणय बंधन, ये सब लिखा जाता है संस्कृत शब्द में। सुंदर भाषा में जो है लिखा जाता है प्रणय बंधन, यानी विवाह आदि के कहा जाता है प्रणय बंधन कहा जाता है। How the bride and bridegroom, they bind with their perfect love and affection. That is called the pranay sutra bandhan. Sutra means, sutra किसको बोलते हैं? Thread. Because एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अथवा एक स्त्री एक पुरुष दूसरे का कैसे बंधन होता है? प्रेम के द्वारा, प्रेम रूपी सूत्र धागा के द्वारा। पता है ना, विवाह के समय बनते हैं कि नहीं बनते? शादी किया तुमने? नहीं किया। शादी किया तो शादी के समय जो है ब्राइडग्रूम के जो है वर और वधू के जो है दोनों हाथ को जो है ऐसे एक धागा के द्वारा बांध दिया जाता है। जो उस धागा के कहा जाता है क्या? प्रणय सूत्र कहा जाता है। द थ्रेड इज कॉल्ड द लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर्स। यानी आज से तुम लोग जो है वेद मंत्र के द्वारा कहा जाता है, आज से तुम लोग प्रेम प्रीति के साथ एक दूसरे के साथ हृदय की भावना के अनुसार गुरु भगवान सेवा आदि करो और संसार में एकत्रित रहो। ये वेद मंत्र में कहा जाता है। आपको पता ही नहीं, हम तो मंत्र पढ़ देते हैं तब हृदय तुम्हारी हृदय हमारी हृदय में कोई अंतर नहीं। एक ही हृदय मन तन आदि लेकर के पति और पत्नी गुरु वैष्णव आदि सेवा आदि करते हैं। संसार में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के चलते हैं। उसी के कहा जाता है प्रणय सूत्र कहा जाता है। समझना? तो चैतन्य महाप्रभु की यही था, ये श्री राधा की प्रणय महिमा, कृष्ण के प्रति इतने जो प्रगाढ़ जो प्रेम की महिमा क्या है? श्री राधा प्रणय महिमा किदिशो बाईवा साधोजन अद्भुत मधुरिमा।
कृष्ण वाणी में विचार करने के मेरे इतने सुंदर मधुरिमा क्या है, स्वीटनेस क्या है? मेरे सौंदर्य माधुर्य के देख करके पशु पक्षी से लेकर के वृक्ष लता आदि यह तक भी वृंदावन में स्थावर जंगम सभी मोहित हो जाता है। यहाँ तक गोपियां भी, विशेष करके उस गोपियों में श्री राधा जी जो है मेरे सौंदर्य माधुर्य के देख करके इतने पागलपन क्यों हो जाते हैं? वाई श्रीमती राधे कंप्लीटली मैट टेकिंग दर्शन माई स्वीटनेस ऑफ ब्यूटी। मेरे मधुर सौंदर्य माधुर्य के देख करके राधा जी इतने पागलपन क्यों हो जाते हैं? मेरे अंदर में है क्या चीज? सौंदर्य आदि देख है क्या चीज? क्योंकि कृष्ण में यही होता है क्या, भगवान जो होते हैं ना, कृष्ण में विशेष एक वैशिष्ट है जहां पर कृष्ण उसमें नवान रूप में प्रतिभात होता है। समझ में क्या बोला? एवर फ्रेश न्यू and Krishna's beauty and form all is ever fresh and new। जिसे संस्कृत में कहा जाता है नवनवान मन में प्रकाशित होता है। इस संसार में संभव नहीं है। इस संसार में हम कोई वस्तु एक बार देखे, दो बार देखे, 10 बार देखे, देखने इच्छा नहीं करता। आप टीवी देखते हो ना, टीवी में जो टेलीविजन जो देखते हो, कोई नाटक देख रहे हो, कोई रिकॉर्ड क्या बोलते हैं मूवी आप देख रहे, कितने बार वो मूवी के देखोगे? 2, 4 बार, 6 बार देखने के बाद आपके देखने की इच्छा नहीं करे। अरे कितना देखे, वही तो व्यक्ति है, दूसरे तो नहीं है। जितना भी सुंदर भी मूवी हो, उस मूवी के 1-2 बार देखने के बाद आप रख लेते हो, इच्छा नहीं करता है। क्योंकि इस संसार में जितना भी वस्तु है वो पास्ट हो जाता, अतीत हो जाता है। किंतु भगवान में क्या होता है? नवनवान रूप में प्रकाशित है, एवर फ्रेश न्यू। जैसे एक बार देखने के बाद कृष्ण के ऐसे लगेगा मैं जीवन में कभी दर्शन नहीं किया। इफ यू टेक दर्शन टू लॉर्ड, यू थिंक आई डिड नॉट सी बिफोर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। क्योंकि भगवान में ये विशेष वैशिष्ट है और उस वैशिष्ट स्वयं कृष्ण में पूर्णतम रूप में है। दिस इज द स्पेशलिटी कंप्लीटली एब्सोल्युटली मैनिफेस्ट इन कृष्ण। कौन सा बोले? नवनवान एवर फ्रेश न्यू। कृष्ण में यही विशेषता है। ऐसा है, जब मैं गोविंद को भी दर्शन नहीं किया ऐसे लोग, और भगवत विग्रह में तो है। जैसे नारद ऋषि केवल शंख चक्र गदा पद्म में विष्णु के दर्शन करके मूर्छित हो गए और फिर कहने के प्रभु आपके वो रूप मुझे दर्शन करा। नारद ऋषि जस्ट ही टुक दर्शन द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी, वेरी टाइनी टाइम, एज लाइक दैट फ्लैश ऑफ द लाइट। विद्युत के तड़ित के भांति क्षण काल के दर्शन करके नारद जी मूर्छित हुए। भगवत दर्शन में इतने सुंदर माधुर्य था और उससे सैकड़ों गुना सुंदर जो माधुर्य किसमें? कृष्ण में। रामचंद्र में भी है, द्वारकाधीश में है, मथुराधीश कृष्ण में भी है। किंतु भगवान रामचंद्र बजनंदन श्याम सुंदर में ये सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित होता है। एब्सोल्युटली मैनिफेस्ट दिस ब्यूटी, यू कैन नॉट इमेजिन। ये गोविंद दर्शन में क्या आनंद होता है, क्या सुख होता है, हम इस संसार में रहकर वर्णन नहीं कर सकते। हम तो हंसी मजाक करते रहते हैं। क्या हंसी मजाक करते रहते हैं? एक सुंदर लड़की हो, उसके क्या कह देते? चंद्रमुखी कह देते हैं। इसके बाद हम क्या कह देते हंसी मजाक करके? क्या बोलते हैं? सूर्यमुखी बोल देते हैं। और इसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको? ज्वालामुखी बोलते हैं। इस संसार की यही है, वास्तव में यही हो जाता है कि इस संसार में परिवर्तन होता है। चंद्रमुखी से सूर्यमुखी, सूर्यमुखी से ज्वालामुखी होते जाता है।
कि संसार की विधि है, हम इसके टाल नहीं सकते। यू कैन नॉट डिनाई दिस, चला जाते इस टाल, क्योंकि सौंदर्यता, माधुर्यता, शीतलता, कमनीयता जितने भी वो धीरे धीरे क्या होता है, ह्रास हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ह्रास समझते हो, रिड्यूस हो जाता है। चंद्रमा भी है, यू आर लुकिंग द फुल मून, आफ्टर फ्यू डे, आफ्टर वन डे, देन कमिंग इज वन। फुल मून के बाद क्या होता है, प्रतिपदा हो जाता है, देन डिमिनिशिंग हिज, क्या बोलते हैं, वाइनिंग ऑफ द मून हो जाता है। उसके एक एक कला कम हो जाता है, इसलिए एक प्रतिपदा का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा क्या हो जाता है, बिल्कुल काले हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। उसका हम न्यू मून कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है। क्योंकि ये संसार के नियम ही ऐसे है। हमारे शरीर एक दिन छोटा था, बालक, कैशोर, यौवन, वृद्ध, फिर बुढ़ा, वृद्ध, फिर शरीर हम त्याग देते, नष्ट हो जाते। इस संसार के जितने भी वस्तु है और टेम्पोरारी और परिवर्तनशील, अस्थाई और परिवर्तनशील, परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हो जाता है। ये जगत के नियम ही ऐसे। हम हंसी मजाक करें, कुछ भी बोले, सब तो सत्य उसे कौन छुपा सकता है कि नहीं? किंतु भगवान में क्या होता है, नित्यनवान मान होता है, चिरयौवनंचम अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम। ब्रह्म समझे, अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम नवयौवनंचम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम, ये सब उनके क्या एडजेक्टिव्स, गुण है। वो एक ही है, अद्वैत है, एक है, एकमेव अद्वितीयम, अद्वैत। तो एक ही भगवान पुरुष कृष्ण अद्वैत। अच्युत होने वो कभी च्युत नहीं होता है, पतित नहीं होता है, भ्रष्ट नहीं होता है, नेवर फॉल डाउन, नेवर पेरिश। अद्वैतम अच्युतम अनादि, अनादि मीन्स विदाउट बिगिनिंग, अनंत, अनादि अनंत रूपम, एंड इनेबल फॉर्म, राम मिश्र में कल की बात। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम नवयौवनंचम, नवयौवन ऑलवेज इज एवर प्रेजेंट यूथफुल फॉर्म। भगवान में ये वैशिष्ट्य है। ब्रह्म संहिता में पढ़ो, आनंद आएगा। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, भगवान में ये विशेष वैशिष्ट्य है। तो आइए कथा में, जिस कथा में चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि माने कृष्ण मन मन विचार करने लगे, ये राधा के हृदय में कौन सा प्रेम है, जिस प्रेम के द्वारा मेरी अपनी सौंदर्य माधुर्य को सदा सर्वदा आस्वादन करते रहते। हम जो कुछ भी देखते हैं ना, किसी को भी देखते हैं, कैसे देखते हैं? हमारी दृष्टि दो प्रकार की होता है। भगवान ने दो आंख दिया, तो दृष्टि भी दो प्रकार, वी हैव टू विजन। हम टू विजन में देख सकते हैं, एक होता है काम चक्षु, एक होता है प्रेम चक्षु। क्या बोला? विजन ऑफ लस्ट और विजन ऑफ लव। किसी आंखों में आप देखो, जिस आंख के द्वारा आप देखना चाहते हो वही तुमको दिखाई पड़ेगा। समझ में? डू यू अंडरस्टैंड? Lord gives us how many eyes? 2 eyes. In the same way, you can take darshan two ways. And eyes of lust or eyes of love. काम चक्षु में देखो और प्रेम चक्षु में देखो, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। This depends on you. किसी भी कोई वस्तु का हम दर्शन करते हैं, प्रेम चक्षु में देखो तो अच्छा ही लगेगा। एक कपड़े भी देखो, हम स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल फीमेल,
इवन एक कपड़े को देखो तो प्रेम चक्षु में देखो अच्छा लगेगा, है? सुंदर, कितना सुंदर है कपड़े है। एक फूल की भी देखो कितने सुंदर आपको लगेगा, है? कितने सुंदर ही गुलाब खिले हुए है, कितने इसमें सुगंध है। ये प्रेम चक्षु हम देख रहे हैं। और काम चक्षु में देखो, मैंने काम मतलब क्या है? बुरी नजर जिसको कहा जाता है, इविल ऑफ आईज जिसको कहा जाता है, बुरी नजर है, इविल आईज। ये गुलाब ठीक नहीं है, ये सड़ गया, सिकुड़ गया। देखो एक ही हमारा दृष्टि तो एक ही है, इसको देखने के तरीका अलग अलग हो जाता है। तो श्री कृष्ण भी मन में विचार कर रहे, राधा जी के हृदय में कौन सा प्रेम है, मेरे दर्शन के इतने आतुर हो गए, सो मच हैंकारिंग, लविंग थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड कहते इनकॉन्सिबल लविंग थ्रस्ट। क्या बोला? इनकॉन्सिबल लविंग थ्रस्ट। इतना सुंदर प्रेम की तृष्णा बढ़ जाता है, जिसमें कहते हैं, क्या बोला? इनकॉन्सिबल लविंग थ्रस्ट, अरे थ्रस्ट तृष्णा, इतने प्रेम की प्रयास जो हो जाता है, वो दर्शन करके तृप्त नहीं होता। इंग्लिश वर्ड का नहीं, इनकंसीवेबल लविंग थ्रस्ट। प्रेम की इतने तृष्णा बढ़ जाता है, तृष्णा बढ़ जाता है। जिस प्रकार किसी के सांदीपानी रोग हो जाता है, एक दैट वन काइंड ऑफ डिजीज, फीवर, डिजीज ऑफ फीवर, बुखार इतने हो जाता है, उस बुखार के नाम कहता है सांदीपानी बुखार कहा जाता है। वो क्या है कि बोले आपके शरीर के तापमात्रा इतने बढ़ जाएगा 104, 5, 6 तक हो जाए, शरीर में जो हाई टेम्परेचर है, फीवर हो जाए। और उस समय आपके गला फटते रहेगा, आपके ऐसे लगेगा ये मैं पानी पीता रहूं, गर्म पानी नहीं, ठंडी पानी, जितने से ठंडी बर्फ के जल, गले हुआ जल है, बर्फ गला जल को उसको पान करना चाहते हैं। किंतु डॉक्टर कहते नहीं, उस समय पानी दिया जाए तो रोगी मर जाएगा। तो रोगी तो छटपटाते हैं, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, गिव वाटर, गिव वाटर। तो उस समय क्या करे? उसका गला सूख जाता है और पानी के लिए चिल्लाता रहता है। किंतु डॉक्टर के नियम के अनुसार उसके पानी दिया नहीं जाता है। तो जब वो चिल्लाता है, तो चलो एक बूंद पानी दिया जाए, गला सूख जाता है ना, 1 ड्रॉप दे दो, और उसी पानी को पी करके उसके क्या होता है, और भी उसको तृष्णा, प्यास बढ़ जाता है। और पिलाओ, और पिलाओ, और उसके ऐसे लगता है सारा समुद्र के जल वो संग पी रहे, ऐसे होता है। और फिर अंत में क्या होते हो, मूर्छा हो जाए, मूर्छित हो जाए, कंप्लीटली चेंज। फिर मूर्छा हो जाने, फिर वो पानी के लिए चिल्लाता रहता है। उस रोग के यही लक्षण होता है, उसे कहता है सांदीपनी रोग, बुखार कहा जाता है। बहुत भयंकर होता है। उस अवस्था में रोगी बचता नहीं है ज्यादातर, बुखार इतने बढ़ जाता है, बुखार इतने बढ़ जाता है, पानी के लिए छटपट रहता है। तो ठीक उसी प्रकार बृहद भागवत सनातन गोस्वामी बात कर रहे हैं, राधे के हृदय में ऐसे प्रेम होता है, कृष्ण दर्शन के लिए इतने लालसा हो जाता है, और दर्शन कर इसलिए और भी देख रहा हूँ, पीऊं मैं और पीऊं, गोविंद की दर्शन की इतने लालसा हो जाता है, ऐसे लगता है और कभी दर्शन नहीं। और उस समय क्या होता है, नवनवान रूप में भगवत दर्शन से नवनवान एवर फ्रेश न्यू चैतन्य चरितामृत वर्णन है कृष्णदास कविराज जी, मैं जो बोल रहा हूँ चैतन्य चरितामृत, यथा संदीपानी रोगी जय छे प्राण दर्शन प्यास तय छे, कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं।
राधा के हृदय में क्या प्रेम था। तो कृष्ण यही विचार कर रहे हैं, मेरे सौंदर्य माधुर्य है क्या चीज, जी मेरे सौंदर्य माधुर्य दर्शन करने के लिए राधा रानी इतने छटपटा रही है, और सांदीपनी रोगी की भांति जैसे है क्या चीज। और मेरे सौंदर्य मधुरमा के देख करके राधा के हृदय में क्या अनुभव क्या होता है। ये 3 वंश इच्छा के लिए स्वयं कृष्ण जो है राधा के भाव कांति लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट हुए। भाव कांति तो ले लिया, किंतु जब तक वो गुरु नहीं मिले वो अनुभव कर नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के गुरु बनाने के लिए जा रहे हैं। चोर को तो आप तो कहेंगे विचार भी होगा, ये चैतन्य महाप्रभु तो दीक्षा किसने दिया, बोलो ईश्वर परिवार से, ईश्वर परिवार से चैतन्य महाप्रभु तो दीक्षा लेकर के आए हैं। फिर केशव भारती तो सन्यास भी तो ले लिया, पर उससे भी काम नहीं हो रहा है। ये प्रेम आस्वादन करने के लिए उसी प्रकार सर्वोत्तम उच्च कोटि के भजन शिक्षा गुरु की जरूरत है। भजन शिक्षा गुरु की जरूरत है। प्रेम दंच में काम दंच में जीवनंच में जीवना पर, बिल्लामंगल ठाकुर लिख रहे इसको कृष्ण का नाम मृत ग्रंथ में। प्रेमदंच में जीवनंच में जीवना, वेदनंच में वेदना पर, वेदवती प्रेम शिक्षा परिपाटी, इसी का भजन शिक्षा गुरु होता है। जब साधक भजन करते करते भाव दस में पहुंच जाता है तब तो उसके समय इसी प्रकार जो है भजन शिक्षा की गुरु जरूरत होता है। वही गुरु जो है आपको आगे लेकर के चले जाते हैं, समझ में? क्योंकि बहुत लोग प्रश्न करते भाई चैतन्य महाप्रभु तो ईश्वर परिवार से तो दीक्षा लिया, फिर सन्यास गुरु की बता रहे हैं लोक दृष्टि से सन्यास गुरु ईश्वर क्या बोले केशव भारती, तो इन लोग से तो करते, फिर क्या रायरमंद से क्या जरूरत है? बोले नहीं, ऐसे सर्वोत्तम उच्च रसिक ब्रज रसिक गुरु के उस समय जरूरत होता है। ये समस्त विचार का चलो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश जाने के मूल ही कारण है रायरमंद के साथ मिलन, और रायरमंद के साथ ये समस्त रस माधुर्य कथा को जो है आस्वादन करना था। समझ में? क्योंकि जब तक हम ये रस माधुर्य की जब आस्वादन नहीं कर नहीं पाएंगे तो हम उस भाव को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। सर्वोत्तम भाव प्राप्ति करने के लिए ऐसे रसिक ब्रजरसिक गुरु की जरूरत होता है। तब जैसे जैव धर्म भी दिखा भक्ति विनोद ठाकुर, ब्रजनाथ, विजय कुमार गुरु से तो दीक्षा ले लिया, और किंतु उस गुरु से प्रणाम करके उनसे आज्ञा देकर के कहाँ गए? जगन्नाथपुरी में गए हैं, और जगन्नाथपुरी में जाकर के और ऐसे बाबा जी महाराज के साथ रह करके रस माधुर्य की कथा को उन्होंने आस्वादन किया है। ऐसा नहीं, तब उनके हृदय में जाकर के वही समस्त अपने भाव जो है वो विकसित हुआ। समझ में आ रहा है? बहुत कथा क्यों जैव धर्म जब तक नहीं पढ़ोगे ना आपके समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैव धर्म स्पष्ट लिख दे, जैव धर्म के पढ़ते रहो तो आपके सारे ज्ञान अपने आप कमल के भांति विकसित हो जाए। इफ यू रीड जैव धर्म then all your knowledge and everything automatically what? And blossom as like a lotus. कमल की भांति अपने आप खुलता है, पंखुड़ी जैसे एक कभी प्रेम माधुर्य प्रकाशित हो जाए। जैव धर्म पढ़ना चाहिए। पढ़ते हो कोई जैव धर्म? कितने लोग जैव धर्म पढ़ा? हाउ मेनी यू read जैव धर्म? अब जैव धर्म पढ़ो।
जब तक जयवधर्म नहीं पढ़ोगे ना वो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जयवधर्म पढ़ो। हम गुरुदेव के पास आते, गुरुदेव का हमें याद है, हम नवद्वीप में जब पहले दिन आए गुरुदेव से मिले, दूसरे दिन गुरुदेव बोले तुम जयवधर्म है, मेरे पास है जयवधर्म लिया। और फिर गुरुदेव जयवधर्म पढ़ाते थे और रोज 3:30 से लेकर के 4:30 तक गुरुदेव नवद्वीप की बात बता रहा है, गुरुदेव जयवधर्म पढ़ाते थे। बहुत आनंद की, क्योंकि जयवधर्म में ऐसे ग्रंथ है उसके जितने पढ़ते रहोगे ना उतना ही वास्तव रूप में आपके सारे ज्ञान की गंशरी ना वो अपने आप विकसित होते हैं, खुलता है। जयवधर्म पढ़ाते, अंडरस्टैंड? एवरीबडी शुड रीड जयवधर्म। जयवधर्म की क्लास होना चाहिए, जैसा आपके गीता की क्लास दी जा रही है, जयवधर्म की क्लास होनी चाहिए। ये हमारे गौड़ीय वैष्णव की मूल एसेट्स है। एसेट्स मतलब संपत्ति है। गीता तो सर्वजनिक क्या बोले, सार्वजनिक और सर्वकालिक, क्या बोला, everyone and for all time. ऑल टाइम, एवरीवन एंड ऑल टाइम, ये गीता है, ठीक है। किंतु जैवधर्म क्या है, ये हमारी गौड़ीय वैष्णव संपत्ति की एक विशेष धन का है। ये होता है ना, एक पब्लिक पार्क होता है, सब लोग जा सकते हैं, सुंदर करके सजाया, बैठने की भी स्थान है, सब कुछ है, सब लोग जाता है, अच्छा पेड़। और एक होता है क्या, अपना प्राइवेट गार्डन होता है, समझे। ये गीता उसी प्रकार भी हम यदि कहे, गीता सर्वकालिक और सर्वकालिक और सार्वजनिक है। और हमारी एक जैवधर्म जैसे ग्रंथ है, ये हमारी हृदय संपत्ति है, वैष्णव की हृदय संपत्ति है, समझे। ये आपकी अपना संपत्ति है, गुरुदेव इसकी व्याख्या करते हैं। क्योंकि जैवधर्म में अपने वैष्णव संप्रदाय की और अत्यंत गुड़ की जो बात जो है, कॉन्फिडेंस होते हैं, रसमाधुर्य एवरीथिंग, वो उसमें वर्णन करते हैं। गीता सर्वलोक पढ़ सके, इनके कर्मी, ज्ञानी, जोगी, मायावादी, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो गीता नहीं पढ़ता है। जो गीता नहीं पढ़ता है तो मूर्ख है। Who is not reading Bhagavad Gita, foolish, मूर्ख। गीता तो सर्वलोक के लिए पढ़ना भी चाहिए। गीता हमारे स्पिरिचुअल जीवन की जो है फाउंडेशन है। भाई तुम्हारे घर के पास इतने सुंदर सरकारी जो पार्क है, पब्लिक पार्क है, जाते नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए, हा? गीता तो उसी प्रकार में सार्वजनिक और सर्वकालिक कहा जाता है। और हमारे जैवधर्म ऐसे ग्रंथ है, केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की जो, केवल गौड़ीय 4 संप्रदाय की, समस्त वैष्णव संप्रदाय की, और विशेष गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की एक विशेष एक अमूल्य धन है, वही का उसके अध्ययन तो मैंने जो कहा, चैतन्य महाप्रभु, ये राधा जी की पुरानी महिमा सद्दो जन मधुरिमा मेरे सौंदर्य माधुर्य के देख करके राधा जी के हृदय में कौन सा सुख होता है, अनुभव होता है, सुख है, अनुभव होता है। सुख समझते हो, सुख क्या है, हैप्पीनेस क्या है। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, बहुत आनंद आया, सुख हो, है? सुख क्या है, अनुभव, फीलिंग है, इसमें तो सुख कहते हैं। सुख और दुख क्या है, ये फीलिंग कहा जाता है। हम सुख की कोई व्यक्त नहीं कर सकते और दुख की भी हम कोई व्यक्त नहीं कर सकते। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई अनहैप्पीनेस। किसके पिताजी मर गए, किसके माताजी मर गई, दुख कर है? क्या दुख है,
है? कुछ नहीं तो हम कहते भाई वो बहुत दुखी है, उसके पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, नेगेटिव में ले रहा है। His mother father very sad. But what is that? But that is sadness. बोले जिस दिन तुम्हारे माता पिता चले जाएंगे तुम्हारी समझ में आएगी। हजार में कहीं थोड़ी होता है, क्योंकि वो अपने उनके माता पिता से उनके रक्त की संबंध है, उनकी माता पिता की साथ उनकी जो एक रक्त की संबंध है, उनकी स्नेह ममता उनके साथ है। हम ऊपर से कुछ दुख क्या बोलते हैं, सिंपैथी प्रकाश करते हैं। सिंपैथी सिंपैथी इज गोल्डन की, नेवर अनलॉक एंड नेवर कहते हैं। हाँ, किंतु वो हमारे पास नहीं है। उनकी माता पिता चले गए, उनकी जो हृदय की उनके माता पिता के संबंध स्नेह ममता प्रीति जो है वो अनुभव कर रहे हैं, वो उसके अभाव बोध कर रहे हैं। अभाव माने he feeling lack of their love and affection with parental love and affection। अभाव को अनुभव कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने माता पिता के साथ जो प्रेम जो प्रीति हम उसके चले जाने के बाद हम इसको अनुभव करते हैं। और व्यक्ति के ही होता है, समझ में नहीं आता। अपने माता पिता के देहांत होने बाद देन उस समय अपने आप को आप अनुभव होगा, ये हमारे माता पिता हमारे प्रति कितने स्नेह ममता रखते हैं। समझ The experience is different. डिफरेंस हमारे तुम्हारी एक्सपीरियंस अपने अपने माता पिता समय बहुत दिन की एक बात है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल की बात बता रहा हूँ, करीब 8-10 साल की मैं था, तो हमारे स्कूल में जो है वो ये होता है, क्या बोलते हैं, रिसाइटेशन होता है ना, आवृत्ति कविता आवृत्ति होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट वो क्या सोशल कल्चर होता रहते हैं ना है? तो उस समय वो क्या पोएट्री जो रिसाइटेशन में किसी एक लड़का था वो एक कोई उधर मेरे माँ इतना ही दिखाई बस, मेरे माँ के बारे में, अपने माँ के बारे में है, माँ शब्द है, उसके बारे में वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। Just he glorified about his mother, माँ के बारे में वो रिसाइटेशन कर रहे हैं, माने आवृत्ति कर रहे हैं। वो जो आवृत्ति कर रहे हैं वो स्वयं रोने लगे, और उस सभा में जितने लोग थे, कम से कम 10,000 लोग, सब रोने लगे। बोले क्यों? बोले एक एक वस्तु की जो माँ की जो प्रेम स्नेह ममता प्रीति की जो वर्णन करते जा रहे हैं वो रिसाइटेशन कविता के द्वारा, एक एक शब्दों में, एक एक अक्षर में सब लोग रोते जा रहे हैं। कम से कम वो आधा घंटा तक बोले, मेरे याद है बहुत। उस समय में मैं भी था, बिल्कुल सुनाई नहीं जा रहा, बिल्कुल ये नहीं दिया, आंखों से आंसू की धारा थी। जितने लोग थे सब रोने लगे, और आधा घंटा कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला। माँ की जो स्नेह ममता जो है, इतने जो वर्णन करते जा रहे हैं। पाश्चात्य देशों की मातृ स्नेह और इंडिया की जो भारतवर्ष की मातृ स्नेह में थोड़ा अंतर होता है, ये सत्य है। कि इंडिया की माता पिता की एक ममता में माता पिता की स्नेह ममता दूसरी धर्म से बने रहता है। है तो ठीक है कि थोड़ा कहने के थोड़ा बहुत फर्क पड़ता रहता है।
वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, मैं भी देखता हूँ, बच्चा को क्या करते हैं, अलग घर में रख देते हैं, ये रात में बच्चा पैं करता है। मैं किसी के घर में जाता हूँ, देखता रहता हूँ, इधर में कराता हूँ। अच्छा 20 साल हुए, इंडियन के घर में रहा, वेस्टर्न के घर में रहता उसे बच्चा को जो है क्या बोलते बेबी रूम में रख देते। ये बच्चा रात 2 बजे करता है, सोने गया है। इंडिया में ऐसे ही नहीं होता है, कम से कम 5-6 साल तक जब तक नहीं हो वो बच्चे को जो अपने बिस्तर में ही रखते हैं। हम लोग 10 बिस्तर में एक भी आदमी छोड़ता ही नहीं, क्योंकि देहात में ऐसे होता ना, इतना प्रेम करते रहे, माँ बच्चे को बिल्कुल छोड़ता नहीं है? और रात में बच्चा क्या करता है, पेशाब कर देता है, पैखाना कर देता है, माँ को उठना पड़ता है? तो उस कविता में वो वर्णन करते जा रहे हैं, जब मैं छोटा था मैंने पेशाब कर दिया, उस टाइम इंडियन में थोड़ी रखता है? सही तो आप लोग भी पता ही नहीं, हमें तो पता है, आप इस देश में जन्म हुआ ना, हमें पता है। इंडिया में जो है छोटा छोटा बच्चे के जो ये सब पहनते नहीं है बस, और रात में वो पेशाब कर दिया, सारे कपड़ा ये हो गया, गीला हो गया, और माँ क्या करती है, उस गीले में बच्चे जो पेशाब करते गीला में वो सोती है, और बच्चे को क्या है सूखा जगह में सुलाती है? कितना कष्ट है। क्वेश्चन में ऐसी थोड़ी होता है। इंडियन जो है, हो सकता है वर्तमान युग में कोई अलग हो, हम भी देखा, घर में भी देखा, जो माँ जो है बच्चे को जो अपने अपना खाने के पहले बच्चे के जब तक नहीं खिलाए तब तक वो खाती नहीं। तो ये स्नेह की, ममता की एक प्रति दूसरी तरह होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में थोड़ा अंतर होता ही रहता है, क्या करें। तो मैं इसे कह रहा हूँ, वो जो कविता जो रिसाइटेशन कर रहे थे आधे घंटे तक वो बोलने लगे, वो बोलने लगे, और कितना 10,000 लोग बैठे, सब रोना शुरू कर दिए। जो बताइए आधा घंटा रिसाइटेशन, तो वो बोल रहे हैं जी आज मेरा माँ चली गई, माय मदर लेफ्ट बॉडी। उसी से वो शुरू करते जा रहे हैं, माँ की स्मृति करते जा रहे हैं, स्मरण करते जा रहे हैं। ये बचपन से लेकर के माँ कैसे पाला पोसा है, वो सारे एक एक करके वर्णन करते जा रहे हैं। उसी मेरे कहने की तात्पर्य इसलिए मैं कह रहा था, ये स्नेह प्रति ममता जो है केवल एक संबंध के साथ होता है। हम जड़ संबंध के पहले समझ ले तो प्राकृतिक संबंध के हम अप्राकृतिक समझ पाएंगे। कांडव ज्ञान तार है दीपक ज्ञान। अरे बामन गोस्वामी महाराज मोस्ट ऑफ द टाइम he used this Bengali word who has no common sense, how possible is transcendental knowledge will manifest. जार नहीं कांडव ज्ञान, तार है दिव्य ज्ञान, कोई को भी नहीं हो सकता है। दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हमें जड़ों की वस्तु की जो अनुभूति नहीं हो रहा है, जड़ वस्तु की हम नहीं जान रहे हैं, अपराकृत वस्तु क्या जान लेंगे? तो हम तो अब रह रहे क्या, जड़ में तो रह रहे। अभी हम कहाँ रहे, इस संसार में तो रह रहे। संसार की सुख दुख वस्तु के हम तब अनुभव नहीं कर नहीं पा रहे, उसकी जान नहीं पा रहे। अपराकृत वस्तु क्या जान लोगे? और अपराकृत वस्तु जानने के लिए तो तरीका उसी प्रकार ही है, उसी प्रकार साधु संग आदि इनसिग्निफिकेंट सोचेंगे तो अब उस अपराकृत वस्तु की तरफ हमारे पास जाएगा। जैसे व्यक्ति गुड़ खा रहे, ये उदाहरण लीजिए धर्म में, 1% जस्ट eating the molasses, यदि उसके पास दिए थे बहुत कीमती समझो, वेरी वैल्यूएबल, उसके मिठाई दिया जाए, स्वीट दिया जाए, वो क्या करेगा? गुड़ को छोड़कर
वृंदावन की सबसे अच्छा मिठाई क्या है? फॉर्चून। नाम ही सुना नहीं आप लोगों ने। फॉर्चून कहा जाता है। अच्छा, राबड़ी, मलाई, रबड़ी मलाई। If you go Mura, and very sweet also. यदि किसी को जी रबड़ी मलाई दिया जाए तो गुड़ खाएगा वो? बड़ी गुड़ तो बेकार है, समझते हैं? तात्पर्य क्या है? जब हम इस जड़ वस्तु की अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो उच्च वस्तु के लेने पर भी आपको अनुभव नहीं हो रहा है। जब वही सर्वोत्तम वस्तु की जब हम अनुभव कर लेते हैं, अपने आप ये वस्तु माने निकृष्ट वस्तु छोड़ देंगे। उच्च वस्तु गिव अप द, ये हमारी बिकाने की तात्पर्य है। तुम्हारे पहले होने से कांड ऑफ ज्ञान होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। हमारे गुरुदेव हर लेक्चर में यही शब्द बोलते थे, उनके बोलने की तरीका ऐसी था, बोले जिसके नहीं कम कांड ऑफ ज्ञान तार है दिव्य। If you have no common sense, so how possible attain the highest दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का? हम नहीं जानते हैं, तो अपराधिक वस्तु का हम क्या अनुभव करेंगे, कैसे प्राप्त कर लेंगे? इसलिए तो चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी पाद बोला, क्या बोला? तुम शुद्ध सदाचार ग्रंथ लिखो। राग भक्ति के प्रचार करो, विग्रह प्रकाशन करो, ग्रंथ आदि लिखो, और उसमें विशेष करके स्पेशलिटी लॉर्ड चैतन्य गिव इंस्ट्रक्शन सनातन गोस्वामी पाद, यू हैव टू मैनिफेस्ट वैष्णव शुद्ध सदाचार ग्रंथ। जिन लोगों की पता नहीं शुद्ध सदाचार क्या है, कैसे ठाकुर जी की सेवा करेंगे? जिस हाथ में खा रहे हैं उसी हाथ में ठाकुर की सेवा करेंगे। ये थोड़ी सुवल सिद्धांत तुम थोड़ी हो, सुवल सिद्धांत के लिए संभव है। सुवल सिद्धांत द इटर्नल एसेट ऑफ Krishna's something and some remnants they are feeding to Krishna. You cannot do this. You are conditioned soul. आप बद्ध जीव है, आप अपना आधा खा करके ठाकुर जी का आप नहीं दे नहीं सकते। तो इसी का चाहिए हाथ होना चाहिए, कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, शुष्क और चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? आप अपने के ब्रजवासी मत समझो, ब्रजवासी तो कृष्ण के नित्य परीक्षा है। वो लोग कभी कपड़ा धोया नहीं धोया तो उसको कृष्ण में डोरा में रहते हैं। ब्रजवासी के धूप तक हम पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए हमें क्या करना है? शुद्ध से बाहर होना चाहिए, कपड़ा धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, खाने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए, पायखाना पेशाब के बाद स्नान आदि करनी चाहिए। ये समस्त शुद्ध सदाचार है। शुद्ध सदाचार सनातन तुम्हें एक सुंदर ग्रंथ है, शुद्ध सदाचार ग्रंथ, जिसको हरिभक्ति विलास नाम है। उसमें सारे नियम जैसे हरिभक्ति ठाकुर जी के कैसे सेवा होना चाहिए, कैसे रसिक बनाना चाहिए, कैसे प्रेम से सेवा हो, विधि मार्ग, राग मार्ग, भाव की कैसे समझ। जैसे हम उदाहरण देते हैं, भैया कोई एक इंडियन के पास जब वास्तव जो बंगाल में चल जो बाल काटने के बाद एक साफ करते हैं ना, उसको स्नान करना पड़ता है। अरे एक दिन क्या कि मेरा बाल काटा और जाकर जो उधर था सब फेंक दिया। देखो पूछो
पर तुम स्नान नहीं करके रसोई घर में आ गया, है कि नहीं? बाल काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कपड़ा त्याग करके स्नान करना चाहिए। मैं कोई बच्चा जो इंडिया में होगा ना, आप इस तरह में रहते रहते हो गया, बस भूल गया ना है? आपके पिताजी सही दीदी पिताजी मानते थे इंडिया में किधर है? फिर इनको तो इंडिया में कोई नहीं संस्कार नहीं बना। फिर इनके जो बेटा और भी नीचे चला गया, वो तो मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि हम लोग जो इंडिया में विशेषकर बंगाल में कोई एक छोटे बच्चे को बोल दो, वो कभी कहते बाल काटने को जानते हैं, स्नान करना चाहिए। जानता है जो हाथ धोना चाहिए। हम तो स्कूल में आते थे, हम लोग घर में घुसते नहीं थे, बोले हाथ पैर देख रहे थे। और जो स्कूल के जो वस्त्र जो हम पहन कर जाते ना, वो दूसरे काम आता है, क्योंकि कौन सा बच्चा में कौन सा कहाँ से मिला बाहर चला। ऐसे ऐसे आजकल तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पश्चात देश हम टीवी के द्वारा हम चलते हैं ना, वही गलत बात है। हम तो सभ्यता होते जा रहे हैं, हम सभ्यता होते जा रहे हैं, हम एडुकेटेड होते जा रहे हैं। हम ये सब छुट फूट ये सब थोड़ी मानेंगे। हम शुद्ध सदाचार नहीं मानेंगे। ये सब बेकार की बात है, सब समय नष्ट करना है। और बिल्कुल वो बिल्कुल जब बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, पर ये तुम्हारे तो नहीं, ये हो गया माने। और हम लोग बिल्कुल पुराने के लिए जा रहे हैं। नाखून बड़ा बड़ा रखते हैं, कहाँ पर रखा है तुमने सीखा? नाखून तो जब लोग मनुष्य जो है जब वो लिखा पड़ा नहीं था, नाखून नहीं काटता था। अब तुम नाखून नहीं काटते, इतना बड़ा बड़ा नाखून कोई थोड़ी होता है। बाल कितने बड़े बड़े रखते हैं, जोटा लगा रहते हैं, जोटा झूठ रखते हैं। तो तुम तो वही कर रहे हो, फिर कर नहीं, ये सब ओल्ड फैशन, ये सब ठीक नहीं। हमारे गुरुदेव की विचार ऐसी सूक्ष्म था, बहुत मीठी भाषा में अच्छी तरफ से काटते थे। मेरे गुरुदेव बामन गोस्वामी मीठी भाषा में ऐसे कांड ऑफ ज्ञान होने चाहिए, कॉमन सेंस होने, जब तक नहीं हो रहा है तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करता है भाई? सब तो कर ले। बोले हाँ भाव, तुम्हारे भाव कहाँ है? अब तो कुछ हुआ ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, तो भाव कहाँ हो गया? बहुत लोग कहते नहीं मैं भाव से सेवा। अरे श्रद्धा हो, अब श्रद्धा स्टेज में जाता है, पहला क्लास पढ़ाई नहीं है, 8 क्लास में समझ में आ रही है? बहुत लोग आज करते हैं, बोले नहीं नहीं मैं तो भाव से सेवा करता हूं, तेरा भाव श्रद्धा ही नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं मैं भाव से सेवा किया, पैर धोया ही नहीं, हाथ पैर धोया ही नहीं, 28। देखो हम तो उतना नहीं कर नहीं पाए जो चैतन्य में वर्णन है। ये राघव पंडित था, महाप्रभु बहुत प्रिय था। बाजार बाजार में सुंदर सुंदर फूल लेकर और अपने विराट ठाकुर जी के भोग लगाते थे। कहीं सुन लिया जी अभी नया कोई फल आए हैं, उस सबसे ज्यादा पैसा देकर के महाप्रभु भोग लगाते थे, माने राधा कृष्ण ठाकुर जी के भोग लगाते थे। तो एक दिन क्या ठाकुर जी के एक नारियल कोई भक्त लेकर के आया,
काट करके दीवार पर लगा दी। देने के समय जो है उन्होंने क्या को फेंक दिया। बोले क्यों? यहाँ पर धूल है, लोग चल रहे हैं, लोगों के पैर की धूल है, ठाकुर जी कैसे बोल करके आया, उसके अच्छी तरह से धो करके फिर ठाकुर जी के बोल बारे में ज्ञान होगा ये ठाकुर की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। ठाकुर हमारी सेवा जो ग्रहण करें, अभी हमारे भाव नहीं, वही भाव से लगा है। अरे श्रद्धा ही नहीं, से भाव कहां से हो जाए? वही बात है ना, जानने कांडो के अंदर दीपक के कॉमन भाव होने से डूब जाओ तो मूर्छित हो जाए, बेकार की बात है। करना चाहिए, कपड़ा धो करके नहा धो करके सब कुछ होना चाहिए। चलो मैं जिस कदर से चैतन्य महाप्रभु मान दिया है, राधा अपने जो बनी सद्दो जन मधुर सब सुंदर माधुर्यों के देख करके क्या उनके हृदय में अनुभव क्या होता है? कृष्ण यही पूरी करने के लिए राधा के भाव और कांति के लेकर के फिर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने किया कि दक्षिण देश में गए और रायरमंद से मिले, उन्हें श्रवण किया, रावण से वार्तालाप की, जिसका राय रामद संवाद कहा जाता है। ऐसा नहीं सुनिए, इस प्रकार एक साधारण भक्त कैसे धीरे धीरे कैसे उच्च मान में भजन अनुसार और दिस रिगार्ड रायनंद ही कोटेड वन वर्स लॉर्ड चैतन्य आज Ramananda told, and one he can achieve, he can fulfill the desires of Krishna, and Krishna will be his Varnashram Acharata Purusena Parapuman Vishnu Aradhate Pantha Nanat Tusa। भगवान प्रसन्न कैसे होता है? जब कोई वर्णाश्रम धर्म की ठीक से पालना आदि करते रहते हैं, विधि मार्ग में चलते हैं, तो ये महाप्रभु इसको एक एक करके खंडन करने लगे। क्यों? जीव के स्वरूपानुबंधी वृत्ति क्या है? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कॉन्स्टिट्यूशन नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटी? जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति के बारे में महाप्रभु सुनना चाहते हैं। व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द जीवस सर्वगत वृत्ति क्या है? ये सब के लिए हमें इस विधि को पालन करना पड़ता है, वर्णाश्रम धर्म आदि से लेकर धीरे आगे फिर आगे जाकर के भक्ति के बारे में जहाँ पर श्रवण की कथा आ जाता है, जब रुचि हो जाता है तब उनकी भक्ति उदित हो जाता है। एक व्यक्ति हरि कथा रुचि ना हुई पंड से विषक्सेन कथा यदि भगवत कथा में किसी को रुचि नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, रसी बना रही है, वैष्णव की सेवा सब कुछ करे, कहते हैं महाराज मेरे कथा में रुचि नहीं होता, नहीं लो उसका अभी तक भक्ति नहीं हो रहा है। कहते हैं तो भक्ति की यही लक्षण दिखा रहे हैं जब भगवत कथा में हमारी रुचि हो। बोले हाँ
कथा में रुचि और समझना चाहिए उसके भक्ति है। और कोई सेवा भक्ति नहीं कर रहे वो भी उसकी भक्ति नहीं कहा जाएगा, माना नहीं जाएगा। 1% जस्ट नहीं है तब उसको समझना चाहिए वो भी भक्ति नहीं है। विसक्सेन कथासु रोती यदि विसक्सेन कथासु हमारे समझने दोनों हमको बैलेंस रखना पड़ेगा। तराजू तराजू समझ बैलेंस पड़ेगा। कथा में श्रवण भी कथा श्रवण सेवा भी विचारते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने राजमंदिर में कहा ज्ञान स्थान स्थित श्रुति तनुमांगवी जो प्रयास अजित जीत तो वो भी क्योंकि जीव की स्वाभाविक यही वृत्ति है भागवत कथा श्रवण। क्यों? भगवान हमारे हम किसका सुनना चाहते हैं? तो हमारे परम मित्र की कथा सुनते हैं। मोबाइल में क्या चीज आता कॉन्टेक्स्ट है वो डर ना वी आर एंटरिंग टुगेदर बस लड़का लड़की रखते हैं ना प्रेम प्रतीक शायद जानते सब जानते हो जानते अरे उसमें मैं कौन है उसमें वही एक और टुगेदर